Hello students, today we'll discuss about kinetic theory of gases. So in kinetic theory of gases, we have certain assumptions, and the assumptions are that we have large number of molecules here. Whenever gas is considered, there are large number of molecules present in the gas. The actual volume occupied by these molecules is negligible as compared to the total volume of the gas. Then these molecules are in continuous random motion, ये zigzag motion perform करते हैं, which is also called as Brownian motion. Brownian motion मतलब वैसा होता है कि अगर छत में किसी अगर फ्लोर पे छत पे अगर छेद रहेगा, अगर सनलाइट आता है उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल का मोशन जो रहता है, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस गैस. Now here the molecules continuously travel with different velocities. एक का v1 है, दूसरे का पता चला v2 है, तीसरे का v3 होगा, zigzag सबका अलग अलग मोशन होगा, v4 एंड सो ऑन. ऐसा करते करते n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे. Now velocity इसका जब हम लोग कंसिडर करते हैं तो all the molecules individually have different velocities. So first of all there is a concept of having mean velocity. Mean velocity means mean of all the velocity, that is v1 plus v2 plus dot 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 plus vn upon total number of molecules, that is L. Mean मतलब average velocity हो गया. There is a next concept which is called as mean square velocity. Now mean square velocity ये terminology में ही clear होता है, that is mean of square of the velocities. It is not mean of the velocities, but it is mean of square of the velocities. Mean of the square of the velocities in the sense ये v1 square plus v2 square plus dot 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 plus vn square. This time we have not considered mean of the velocities, but it is mean of the square of the velocities, और इसको n से डिवाइड करेंगे. यहाँ पर velocities का mean था, ये square का mean है. And the next concept is called as root mean square velocity. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहाँ पर दिया है. नाउ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब इट इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज. नाउ रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ही स्क्वायर रूट कंसीडर करें. दैट मीन्स इट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vn स्क्वायर अपॉन n. जो ऊपर वाला टर्म है उसी का स्क्वायर रूट हमने कंसीडर किया है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज v RMS स्पीड और RMS वेलोसिटी. अभी क्या ज़रूरत है RMS वेलोसिटी कंसीडर करने का? सी अपने को मालूम है कि गैस अगर कंटेनर में रखा है तो कंटेनर इज स्टेशनरी, जिसका मतलब है गैस भी स्टेशनरी होगा, और गैस स्टेशनरी होगा तो गैस को काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है. बट वी हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस. नाउ व्हाई इज इट सो दैट वी हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस? Since the molecules of this gas, they are continuous in random motion, that means all the molecules will be having its kinetic energy. हर molecule का एक अपना kinetic energy होगा, and some of all the kinetic energies of these molecules will be collectively called as the kinetic energy of the total gas. Gas भले stationary है लेकिन फिर भी kinetic energy gas का है. और kinetic energy का फॉर्मूला कैसा होता है? It is given as half mv square, half into mass into square of the velocity. बट यहाँ पर गैस आपका स्टेशनरी है लेकिन काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका मतलब देयर शुड बी सम और द अदर रिप्रेजेंटेशनल वेलोसिटी फॉर दैट गैस. गैस को भी एक वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए, जिसका हम लोग ये RMS वेलोसिटी करके यूज़ करते हैं. तो RMS वेलोसिटी मीन्स इट इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, और ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसका ही स्क्वायर है. अगर मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर उसका ही स्क्वायर है तो इसका मतलब है दिस विल बी गिवन एज v RMS स्क्वायर. मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज v RMS स्क्वायर. नाउ यूजिंग दिस बेसिकल टर्मिनोलॉजी we'll proceed with the pressure exerted by the gas, which is called as pressure equation. Pressure equation बोल सकते हैं या फिर pressure exerted by the gas. Now pressure exerted by the gas के लिए क्या करना होगा? We'll consider a cubical container. एक cubical container अपने को consider करना है. Cubical container means all the faces of this container will be square shaped. We'll consider a cubical container. मैं डायग्राम विदाउट स्केल ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा होगा. नो क्यूबिकल कंटेनर कंसीडर क्या कंडीशन इज दैट वन ऑफ द वर्टेक्स इज दैट ओरिजिन. एक वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे होगा एंड इट्स को टर्मिनस एजेस, जो इसके को टर्मिनस एजेस एक एज एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा. दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस,
second edge is along y axis, third edge is along z axis, and this is your origin. This is how the cubical container is considered. Now in this cubical container the gas is considered और बहुत सारे molecules होंगे. तो first of all there are certain assumptions that mass of each molecule is given as small m. This is given as mass of each molecule. N represents the total number of molecules. Now if N represents total number of molecules, then number of molecules into mass of each molecule will be called as mass of the gas. पूरे गैस का mass फिर N into M हो जाएगा. This is how we have considered N into M. ये basically considerations है. Then cubical container is considered. इसके हर एक साइड का कुछ लेंथ होगा और सबका लेंथ एक ही सेम आएगा. लेट अस कंसीडर दिस इज L. इट इज लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब. लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ क्यूब. क्यूबिकल कंटेनर का लेंथ हमने कंसीडर किया. फिर इस तरह से कंसीडर करने के बाद कोई एक आधा मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया, एंड हियर वी आर कंसीडरिंग द मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस. अगर हमने कंसीडर किया, सपोज इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड विथ वेलोसिटी vx. अब राइट हैंड साइड में ये जो वॉल है कंटेनर का, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ABCD, एंड दिस वॉल इज रिप्रेजेंटेड एज OPQR करके कंसीडर किया. दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू कोलाइड विद दिस वॉल ABCD, और कोलाइड होने के बाद एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. ना कोलाइड होने के बाद एग्जैक्टली अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इट विल अगेन हैव वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी विल बी -Vx. अभी -Vx क्यों होगा? बिकॉज हियर वी आर फॉलोइंग साइन कन्वेंशन. एट प्रेजेंट Vx और जो अभी डायग्राम में दिखाया है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड, और राइट साइड में साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव कंसिडर होता है. व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड वी कंसिडर एज नेगेटिव वेलोसिटी. Now all because of this velocity, this molecule will be having momentum also. मतलब इसके पास momentum भी होगा. Then we can have this change in momentum, and this change in momentum is given as final momentum. अभी final momentum यहाँ पर क्या होगा? Since after colliding wall ABCD, molecule is moving towards left side, its velocity is negative, so therefore momentum will become as -mvx. बिकॉज ऑफ -Vx की वजह से उसका मोमेंटम -mvx हो गया. माइनस इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम अगर देखेंगे तो Vx इज मूविंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड डायरेक्शन, दैट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन है. पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब मोमेंटम प्लस mvx होगा. दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम विच फाइनली कम्स एज -2mvx. दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम. देन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? वी हैव टू डिवाइड इट बाय टाइम, यानी कि -2mvx को हम लोग टाइम t से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ टाइम t का कैलकुलेशन कैसे होगा? नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस वेलोसिटी, उसका स्पीड हमने vx कंसीडर किया है. नाउ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम. वॉल ABCD से कोलाइड होने के बाद ये वॉल OPQR से कोलाइड होगा, वापस वॉल ABCD पे आएगा. बिटवीन ईच सक्सेसिव कोलिजन विथ वॉल ABCD द मॉलिक्यूल विल बी ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 2l. कैसे 2l डिस्टेंस ट्रैवल होगा? ABCD से OPQR तक जाएगा तो l, वापस वहाँ से ABCD तक आएगा तो अगेन l. दैट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड विल बी गिवन एज 2l, एंड द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज गिवन एज t. वही यहाँ पर t इस्तेमाल होना है अपने को. दैट मीन्स t इज इक्वल टू, this will be given as 2l upon Vx. तो रेट इन चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर कंसिडर करते हैं दैट विल बिकम एज -2mvx अपॉन t की जगह पे आएगा 12/Vx, जिसमें से 2 कैंसिल, दैट मीन्स इट विल बिकम एज -mvx स्क्वायर अपॉन l विल बी दिस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. नाउ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी से दैट इट इज फोर्स. दैट मीन्स फोर्स जनरेटेड बाय दिस मॉलिक्यूल. नाउ फोर्स जनरेटेड बाय मॉलिक्यूल इज गिवन एज -mvx स्क्वायर अपॉन l दिया. इसका मतलब फोर्स exerted
on the wall ABCD will be exactly opposite. That means it will become as mvx square upon L करके आएगा. माइनस का प्लस होगा. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट रिएक्शन. इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा तो इसका अगर माइनस में रहेगा मॉलिक्यूल का तो वॉल पे उसका प्लस में होना चाहिए, यानी कि mvx स्क्वायर होगा. ये हमने टेंटेटिवली कंसीडर किया है. टेंटेटिवली कंसीडर किया इसका मतलब है सिर्फ एक मॉलिक्यूल का कंसीडर, लेकिन ऐसे टोटल कितने मॉलिक्यूल है? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. तो इसका मतलब है टोटल फोर्स along x axis, that is fx, is equal to fx1 plus fx2 plus dot 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 fxn करके कंसीडर होगा ना. fx1 क्या होगा यहाँ पर? एक जनरल मॉलिक्यूल का अगर ये कंसीडर करें तो पहले मॉलिक्यूल के लिए mvx1 स्क्वायर अपॉन l. For second molecule this will be mvx2 square upon L plus dot 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 so on. This will be given as mvn, I'm sorry, here it should be vx2, vxn whole square upon L करके consider किया. That means your fx is coming as m upon L is taken as common. This will become as vx1 square plus vx2 square plus dot 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 plus vxn square. Then we can have pressure. Therefore pressure along x axis px is equal to fx upon area, और यहाँ पर एरिया होगा l स्क्वायर, बिकॉज द फेस ऑफ द क्यूब इज स्क्वायर शेप, तो उसका एरिया साइड स्क्वायर होगा, दैट इज l स्क्वायर. और fx का वैल्यू ऊपर दिया है, अगर उसको l स्क्वायर से डिवाइड किया दैट मीन्स इट विल बिकम एज m अपॉन l क्यूब इंटू vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vxn स्क्वायर. This is the pressure along x-axis. Similarly, we can have pressure along y and z axis. That means Py will be equal to, same ऐसी फॉर्मूला होगा, m upon L cube will be considered. बस यहाँ पर Vy1 square plus Vy2 square plus dot 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 Vyn square will be considered. And Pz will be equal to m upon L cube into Vz1 square plus Vz2 square plus dot 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 Vzn square will be considered. Is it fine? Now ये तीनों प्रेशर आया है. प्रेशर यहाँ पर तीनों ही डायरेक्शन में सेम रहेगा. दैट मीन्स Px will be equal to Py will be equal to Pz. Let us consider that pressure is considered as P. तो ये तीनों को जब ऐड करेंगे that will become as 3P. तो 3P is equal to what? Px plus Py plus Pz. And when you add these three pressures, तीनों में से m upon L cube कॉमन निकलेगा. अंदर क्या आएगा? तीनों का एडिशन होगा. तो फर्स्ट वन विल बी एडेड विद फर्स्ट वन, दैट इज vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर इज कंसिडर्ड. नेक्स्ट second molecule it will be considered as vx2 square plus vy2 square plus vz2 square and so on. This will be continued. The last molecule that is given as vz1 square plus vz2 square plus, sorry, extremely sorry, it is vxn square plus vyn square plus vzn square. nth मॉलिक्यूल तक कंसीडर किया. अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? जनरली अगर कोई भी मॉलिक्यूल का स्पीड हमने अगर v से डिनोट किया तो दिस विल बी रिजॉल्व्ड अलोंग x एक्सिस एज vx, दिस विल बी रिजॉल्व्ड अलोंग y एक्सिस गिवन एज vy and there will be velocity along z axis, that is vz. In general the formula is v square is equal to vx square plus vy square plus vz square. Now ऐसे अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जनरलाइज करें, दैट इज v1 स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर. सेम वे फॉर सेकेंड मॉलिक्यूल इट विल बी v2 स्क्वायर इज इक्वल टू vx2 square
plus Vy2 square plus Vz2 square, and this is continued to the nth molecule, that is Vn square is equal to Vxn square plus Vyn square plus Vzn square. और वही चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये V1 स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर डॉट 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 Vn स्क्वायर. दैट मीन्स योर P इज इक्वल टू m अपॉन 3 इंटू एल क्यूब. 3 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, एंड दैट कम्स एज V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Vn स्क्वायर. ना हियर इन दिस एक्सप्रेशन ये m अपॉन 3 एल क्यूब ऐसा ही है. दिस एक्सप्रेशन V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Vn स्क्वायर अगर को हमने n से डिवाइड किया तो इसका मतलब n इधर मल्टीप्लाई भी होगा. दैट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग एज वेल एज डिवाइडिंग बाय कैपिटल N. एंड व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कैपिटल N, दिस एक्सप्रेशन इफ यू कैन सी दैट इज एग्जैक्टली सेम एज दिस इज, दैट इज Vrms स्क्वायर. और इस एक्सप्रेशन को अगर n इंटू एम कंसिडर करें, दैट इज गिवन एज मास ऑफ द गैस. दैट मीन्स इट विल बी गिवन एज कैपिटल M अपॉन 3 इंटू एल क्यूब विल बी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. साइड का लेंथ अगर ले तो दिस विल बी गिवन एज V, एंड दिस विल बिकम एज Vrms स्क्वायर. दैट इज P इज इक्वल टू 1/3 वैसे ही रहेगा. M अपॉन V विल बी कॉल्ड एज डेंसिटी इंटू Vrms स्क्वायर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस on the wall of the container. अब टेक्स्ट बुक में ये डेरिवेशन बहुत शॉर्ट में दिया है, इसीलिए समझने में तकलीफ होता है. आई हैव एलैबोरेटेड दिस टू अंडरस्टैंड हाउ दिस एक्सप्रेशन इज डिराइव्ड. नाउ यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन प्रोसीड फर्दर विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस फॉर द डिफरेंट कंडीशंस. काइनेटिक एनर्जी गैस का कैसे होगा वो निकालने का है. लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस. एज फार एज बोर्ड्स आर कंसर्न यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम विद पेंसिल. और ध्यान में रखिएगा बोर्ड्स में आपको डायग्राम नीटली स्केल पेंसिल से ड्रॉ करना है, फ्री हैंड नहीं बनाना जैसे मैंने बनाया है. मैं भी स्केल से बना सकता हूँ बट इट विल टेक टाइम, तो वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा नेसेसरी. दैट्स व्हाई आई हैव रेस्ट्रिक्टेड टू फ्री हैंड ड्रॉइंग. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कैसे होगा देखते हैं. The expression for the pressure P is given as 1 upon 3 rho into Vrms square. ये फॉर्मूला है उसका. Where this pressure can be given as 1/3 into rho के जगह पे हम लोग मास पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था, and this is Vrms square. 3V is shifted to left hand side, that means it will become as 3PV is equal to m into Vrms square. दोनों साइड अगर हाफ से मल्टीप्लाई होता है तो दैट वुड बिकम एज 3/2 PV इज इक्वल टू 1/2 m into Vrms स्क्वायर. अब इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये हाफ mv स्क्वायर के फॉर्म में ही है. हाफ mv स्क्वायर में क्या है, half m is mass of the gas and Vrms is the representational velocity of the gas. इसका मतलब half m Vrms square क्या होगा, it will be called as kinetic energy of gas. That means your kinetic energy of gas will be equal to 3/2 PV. टेक्स्ट बुक में उन्होंने डिस्कस नहीं किया बट न्यूमेरिकल पूछा है, तो you require this formula, kinetic energy of gas will be equal to 3/2 PV. Next comes kinetic energy of gas per unit volume. Now kinetic energy of gas per unit volume अगर कैलकुलेट करना रहेगा तो nothing but it is kinetic energy of gas divided by volume, and that will be equal to 3/2 PV upon V, which is equal to 3/2 P. This is your kinetic energy of the gas per unit volume. Then we can have kinetic energy of gas
पर मोल। मोल एक अलग कंसेप्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने का। दैट इज मॉलिकुलर वेट वेन एवर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम इट इज कॉल्ड एज 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट 32 है, तो व्हेन वी कंसीडर 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सोडियम की बात करेंगे, सॉलिड सब्सटेंस की बात करें, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है। व्हेन वी कंसीडर 23 ग्राम्स ऑफ एटॉमिक सोडियम इट विल बिकम एज 1 मोल ऑफ सोडियम। सो हर सब्सटेंस का मोल का कैलकुलेट करने का तरीका उसके मॉलिकुलर वेट पे डिपेंडेंट रहेगा। Now how to find out kinetic energy of gas per mole? To find out this kinetic energy of gas per mole, first of all we will consider what is kinetic energy of gas. Now kinetic energy of gas by formula जो हमने अभी निकाला that is 3/2 PV, ये ऊपर formula है। But for ideal gas equation PV is given as nRT, where n is the number of moles, R is the universal gas constant and T is the absolute temperature. That means kinetic energy of the gas can be given as 3/2 nRT भी लिख सकते हैं उसको। This can be given as 3/2 nRT also. अब ये 3/2 nRT लिया है। Now if I consider n is equal to 1, n is equal to 1 का मतलब I have consider number of moles as 1। अगर number of moles मैंने 1 लिया तो फिर जो kinetic energy of gas है this will automatically become as kinetic energy of gas per mole। एक मोल का kinetic energy मिल जाएगा अपने को and that will become as 3/2 RT। This is your kinetic energy of the gas per mole is considered to you. Then we can have kinetic energy of the gas per molecule also. Per molecule you can find out the kinetic energy of the gas. How it is done? 1 mole is equal to Avogadro's number of molecules or Avogadro's number of atoms, which is denoted by Na, जिसका वैल्यू 6.022 into 10⁻23 कंसीडर किया है। ना अगर 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एंड दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल बाय फॉर्मूला इट इज 3/2 RT। अगर दोनों साइड को हमने Na से डिवाइड किया दैट इज एवोगाड्रोस नंबर से। अगर एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर है तो एवोगाड्रोस नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल। दैट मीन द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इट विल बिकम एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इट विल बी पर मॉलिक्यूल एंड दैट विल बी गिवन एज 3/2 R upon n का एक्सप्रेशन अगर कंसिडर दैट विल बी गिवन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज 3/2 kBT इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस per molecule. This is how the various expressions are given for kinetic energy of the gas. ये consider हो, उसके बाद we can find out RMS speed or RMS velocity of the gas. How to find out RMS velocity of the gas? Now your expression for P is given as 1/3 m into V RMS square, जिसमें V RMS स्क्वायर अगर कंसिडर करेंगे तो दैट विल बी गिवन एज 3 PV अपॉन m इज कंसिडर्ड। बट एज आइडियल गैस इक्वेशन स्टेट्स PV कैन बी गिवन एज nRT अपॉन m, where n represents number of moles. And here in this case if we consider n is equal to 1, मतलब number of mole अगर 1 लिया तो then in that case this mass of the gas has to be equivalent to molecular weight of the gas. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, mole contains molecular weight of the substance. इसका मतलब है this V RMS square will be equal to 3 RT upon capital M, but here capital M is not representing mass but it is representing molecular weight of that gas, molecular weight of that substance, क्योंकि हमने 1 mole of substance consider किया। And RMS speed is considered, that is under root of 3 RT upon M. This is the formula जो आप न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं to find out the RMS speed of the gas. इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विथ मेयर्स रिलेशन। Now before proceeding with the Mayer's relation, you have to understand the concept of specific heat. Understand the concept of specific heat. Now to understand the concept of specific heat, ये स्कूल में आपने पढ़ा है, स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट आपने पढ़ा है।
Now how it is given to you as whenever energy supplied to any substance, किसी भी substance को जब energy supply होता है, that energy supplied is given as mass into specific heat into rise in temperature. ये फॉर्मूला स्कूल का है, m into s into delta t. ये स्कूल से आया फॉर्मूला, नया नहीं आपके लिए. So therefore specific heat is defined as q upon m into delta t. That is, here if you consider m is equal to 1, delta t is equal to 1, that means it is unit mass of the substance, unit degree rise in temperature, मतलब per degree rise in temperature अगर consider करेंगे तो then specific heat is defined as the quantity of heat energy supplied. यानी कि specific heat का definition ही ऐसा है, it is energy supplied to the substance to rise the temperature per unit mass per degree rise in temperature. ये specific heat का basically definition है. The quantity of energy required to raise the temperature per unit mass per degree rise in temperature. Now specific heat में भी दो टाइप होते हैं, principal and molar specific heat. Specific heat अगर consider करेंगे तो there are of two types. One is principal specific heat and another is molar specific heat. Principal specific heat and molar specific heat. Now दोनों ही principal और molar specific heat is considered at constant volume and constant pressure. दोनों constant volume और constant pressure में consider होता है. Constant volume and constant pressure. Both the case. इधर भी ऐसे आएगा. This is divided into two. Constant volume and constant pressure. प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट हम लोग उसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, मोलार स्पेसिफिक हीट को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं. फर्क दोनों में ये है, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इट इज पर यूनिट मास, वॉट एवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड इट इज डिस्कस्ड फॉर पर यूनिट मास. एंड मोलार स्पेसिफिक हीट व्हेनेवर वी कंसीडर इट इज पर मोल, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस. कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर में क्या फर्क है? एज वी हैव डिस्कस स्पेसिफिक हीट एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर पर यूनिट मास पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो उसमें एक वर्ड ऐड हो जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर पर यूनिट मास पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर at constant volume is called as principal specific heat at constant volume, that is given as SV, and at constant pressure it will be given as SP. Similarly molar specific heat होगा तो यहाँ पर the quantity of energy required to raise the temperature per unit mass के जगह पे इधर फर्क आएगा per mole per degree rise in temperature. At constant volume will be denoted as CV and at constant pressure it will be denoted as CP. This is how it is defined specific heat. यही स्पेसिफिक हीट यूज करने के बाद हम लोग मेयर्स रिलेशन डिराइव कर सकते हैं. नाउ वी सी दैट व्हाट इज मेयर्स रिलेशन एंड हाउ दे आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर. जस्ट अ मिनट. For Mayer's relation, we consider cylinders, identical cylinders are considered filled with 1 mole of gas in both the containers. दोनों कंटेनर्स में 1 मोल गैस का कंसिडर होगा. Both of them are considered with 1 mole of gas. दोनों जगह. पहला वाला केस यहाँ पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंसिडर किया एंड सेकेंड केस इज एट कांस्टेंट प्रेशर. In both the cases we have to provide the heat energy to the gas such that the temperature rises
फ्रॉम T डिग्री केल्विन टू T प्लस dt, दोनों ही केस में T से T प्लस dt तक टेम्परेचर राइज होना चाहिए दोनों केसेस में। अब कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में अगर कंसीडर करते हैं, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम whatever energy is applied, since your volume is fixed, the total energy whatever it is applied, this will be used to increase the internal energy, वो internal energy बढ़ने के काम में आएगा। अब ये कैसे होता है? एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है? एनर्जी सप्लाई टू एनी सब्सटेंस इज गिवन एज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एज वेल एज टू डू द एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। वी हैव टू DW वो है वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर के लिए कैलकुलेट होगा ना। इन द केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम DW का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि कोई पिस्टन मूव नहीं हो रहा है। पिस्टन अगर ऊपर जाएगा नहीं तो एक्सटर्नल वर्क डन नहीं, मतलब DW इज 0। दैट मीन्स वॉट एवर एनर्जी इज अप्लाइड दैट विल बी यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, दैट इज D। ना हाउ टू कैलकुलेट दिस D? अब D का कैलकुलेशन कैसे होगा? ना एनर्जी वॉट एवर इट इज अप्लाइड, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एनर्जी सप्लाइड इज गिवन एज मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू राइज इंटू टेम्परेचर। ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, अगर मोलार स्पेसिफिक हीट होता तो इधर नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, इधर मोलार स्पेसिफिक हीट होगा और राइज इन टेम्परेचर में इसी रहेगा। फिलहाल वही है ना DQ at 1। यहाँ पर क्या होगा? द मास ऑफ द सब्सटेंस की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स दिया है कितना? 1 इंटू स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दैट इज गिवन एज CV एंड इंटू राइज इन टेम्परेचर दैट इज गिवन एज DT। दिस इज 1 इंटू CV इंटू DT, दैट कम्स एज CV DT। Now for constant pressure, कांस्टेंट प्रेशर अगर कंसीडर करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर में अगर एनर्जी आपने अप्लाई किया तो इट विल बी एक्चुअली यूटिलाइज एज DQ, बिकॉज हियर व्हेन द एनर्जी इज अप्लाइड द पिस्टन चेंजेस इट्स पोजीशन, and if piston changes its position that means displacement is covered by the piston, and if displacement is covered by the piston that means there is work done against external pressure, और इसलिए वो DE की जगह पे DQ ही रहेगा। बट ये DQ कैलकुलेट करने का तरीका वैसे रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू CP इंटू DT एंड दैट विल बी गिवन एज CP DT। ये एक्सप्रेशन हो गया ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज दैट DQ इज इक्वल टू DE प्लस DW। DQ का वैल्यू अपने पास है CP DT, DE का वैल्यू अपने पास CV DT प्लस DW की जगह पे हम लोग PdV लिख सकते हैं। ये आपको डायरेक्टली लिखना है, लेकिन मैं डिराइव करके बता देता हूँ कि DW बेसिकली इट इज गिवन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड सिंस प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया तो फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया, मतलब DW का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी PA इंटू DX हो जाएगा। PA इंटू DX, तो A इंटू DX विल बी कॉल्ड एज चेंज इन वॉल्यूम, दैट मीन्स इट विल बी गिवन एज PdV। वही फॉर्मूला यहाँ पर आता है, PdV हमने कंसिडर किया ना। इस एक्सप्रेशन को अगर देखें तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT है, बट सिंस n इज इक्वल टू 1 इसलिए यहाँ पर PV इज इक्वल टू RT है। डिफरेंशिएटिंग दिस एक्सप्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू T, दिस विल बी P इंटू DV बाई DT प्लस V इंटू DP बाई DT कंसिडर होगा, इज इक्वल टू R इज कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ T इज गिवन एज 1। नाउ फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर द कंडीशन इज दैट हियर योर चेंज इन प्रेशर विल बी इक्वल टू 0। जब प्रेशर ही कांस्टेंट है तो प्रेशर में चेंज नहीं आएगा, DP विल बी 0, और अगर DP 0 होगा तो इसका मतलब दैट मीन्स दिस इज PdV अपॉन DT विल बी सिंपली इक्वल टू R, दैट मीन्स PdV इज इक्वल टू RdT। PdV इज इक्वल टू RdT मतलब ये PdV की जगह पे एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट होगा, दैट मीन्स इट विल बिकम एज CP DT इज इक्वल टू CV DT plus R dt dividing throughout by dt, that will become as CP is equal to CV plus R, and this expression can be given as CP minus CV is equal to R। और अगर CP और CV हीट यूनिट्स में मेजर हुआ रहेगा तो दिस कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज CP minus CV is equal to R upon J, दैट मीन्स हीट यूनिट्स में इसको कन्वर्ट करना रहेगा, हीट एक्विवेलेंट से डिवाइड करने का है, बिकॉज योर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। जूल से अगर कैलोरी में कन्वर्ट करने का तो जे से उसको डिवाइड करना रहेगा। दिस इज हाउ द मेयर्स रिलेशन इज डिराइव्ड। टेक्स्ट बुक में फिर से एक बार टेक्स्ट बुक में डायग्राम नहीं दिया है इसलिए और समझने में डिफिकल्टी होता है। दिस इज हाउ मेयर्स रिलेशन इज डिराइव्ड। बाकी तो एक्सप्लेनेशन है, किसी भी डेरिवेशन है एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा मार्क्स नहीं होता है,
हाफ से 1 मार्क्स का ज़्यादा से ज़्यादा उसका बाइफर्केशन रहता है, बाकी सब इक्वेशन और डायग्राम पे डिपेंडेंट रहता है. इफ यू राइट डाउन द इक्वेशंस प्रॉपर्ली यू आर बाउंड थ्रू दैट यू विल गेट गुड मार्क्स. देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला कंसेप्ट है इसके अंदर. लेट अस सी व्हाट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर कंसिडर करते हैं, एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज गिवन एज 3/2 kBt, जो हमने डिराइव किया थोड़ी देर पहले, विच कैन बी गिवन एज हाफ kBt, हाफ kBt, हाफ kBt करके लिख सकते हैं. उसको बाइफरकेट किया हमने. अब इससे क्या समझ में आता है, एक मॉलिक्यूल अगर कंसिडर किया तो इसके 3 तरह से ट्रांसलेशन मोशन हो सकते हैं. The molecule can perform translation motion along x-axis, it can perform translation motion along y-axis, it can perform translation motion along z-axis. That means there will be kinetic energy of the molecule along x-axis, there will be kinetic energy of the molecule along y-axis, there will be kinetic energy of the molecule along z-axis. अब यहाँ पर हर एक डायमेंशन के लिए एक एक हाफ kBt आ रहा है, मतलब फॉर एवरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वी हैव हाफ kBt ऑफ एनर्जी डिवाइडेड. और यहाँ पर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, उसी का इस्तेमाल करना है अपने को आगे प्रोसीड करने का है. फॉर एवरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम द एनर्जी विल बी गिवन एज हाफ kBt. तो सिमिलरली इफ आई कंसीडर फॉर मोनो एटमिक गैस, मोनो एटमिक गैस के लिए अगर कंसीडर करते हैं तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटमिक गैस इज गिवन एज 3. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज गिवन एज 3. तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, energy of molecule will be given as 3 into half kBt, यानी कि 3/2 kBt. ये एक मॉलिक्यूल का हो गया. तो देयरफॉर एनर्जी पर मोल, एनर्जी ऑफ गैस पर मोल will be given as 3/2 kBt is for one molecule. लेकिन एक मोल में Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो Na से मल्टीप्लाई होगा, और Kb को Na से अगर मल्टीप्लाई करें दैट विल बिकम एज RT, दैट इज E इज इक्वल टू 3/2 RT. दिस इज योर एनर्जी ऑफ द गैस पर मोल. टू फाइंड आउट दिस CV का फॉर्मूला आपने देखा होगा, मेयर्स रिलेशन अभी दिखाया था, दैट वाज गिवन एज dE/dt. अगर वो dE/dt अगर कंसिडर करेंगे तो दिस विल बी dE/dt ऑफ 3/2 R2, मतलब 3/2 R कॉमन लिया एंड डेरिवेटिव ऑफ T इज गिवन एज 1, मतलब ये 3/2 R हो गया. देन Cp का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो Cp इज गिवन एज Cv प्लस R, एंड Cv प्लस R दैट मीन्स इट इज 3/2 R प्लस R विच इज इक्वल टू 5/2 R, एंड द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट गामा इज गिवन एज Cp अपॉन Cv which is equal to 5/2 R upon 3/2 R, where R 2 cancel, that comes as 5/3. और इसका वैल्यू 1.67 के आसपास आता है. दैट मीन्स फॉर मोनो एटमिक गैस द रेशियो स्पेसिफिक हीट इज गिवन एज 5/3. सेम वे फॉर डाई एटमिक गैस, उसमें भी कंसीडर किया है, दैट इज फॉर रिजिड मॉलिक्यूल. डायटमिक गैस मतलब 2 एटम्स एक फिक्स सपोर्ट से बंधे हुए हैं, और अगर 2 एटम फिक्स सपोर्ट से बंधे हुए दैट मीन्स लाइक दिस वे 2 एटम्स आर अटैच्ड बाय रिजिड सपोर्ट. नाउ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल हो गया अलोंग जेड एक्सिस, दिस इज द 3 ट्रांसलेशन मोशन, और 2 रोटेशनल है, एक इस तरह से रोटेट होगा और एक इस तरह से रोटेट होगा. दैट मीन्स द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हियर फॉर डायटमिक गैस विल बी गिवन एज 5, एंड देयरफॉर energy of molecule is equal to 5 into half kBt, that is 5/2 kBt. So energy per mole E is equal to Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 RT हो जाएगा.
दैट मीन्स सी वी अगर कैलकुलेट करना है तो डी बाई डी टी, और अगर डी बाई डी टी कैलकुलेट करें दैट मीन्स इट इज़ 5/2 आर इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी इज 1, एंड व्हेन वी कंसिडर फॉर सी पी इट विल बी सी वी प्लस आर, आफ्टर कैलकुलेटिंग दैट विल बिकम एज 7/2 इंटू आर. दैट मीन्स gamma will be equal to Cp by Cv, which is 7/2 R upon 5/2 R. R2 cancel, that will become as 7/5. This is energy per, ratio of the specific heat. Same way we can have diatomic gas when it is non-rigid molecule. तो इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? बाकी तो रिजिड जैसे ही होगा, बस यहाँ पर दो चीज़ होता है कि अगर वो नॉन रिजिड इसका मतलब इट कैन हैव वाइब्रेशन एनर्जी, बट वाइब्रेशन एनर्जी दो होता है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक, मतलब 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएंगे एंड दैट टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बिकम एज 7. एंड अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू गो फॉर एनर्जी ऑफ द गैस पर मोल, ये 5/2 RT की जगह पे यहाँ पर आएगा फिर 7/2 RT, एंड देयरफॉर अगर आपने CV कैलकुलेट किया तो इट विल बी डी बाई डी टी विच विल कम एज 7/2 R, and Cp अगर कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी Cv प्लस R, दैट विल कम एज 9/2 R. दैट मीन्स gamma विल बिकम एज Cp by Cv once again, which is equal to 9/2 R upon 7/2 R, which is equal to 9/7. Same way we can have for polyatomic gas. पॉलीएटमिक गैस अगर कंसीडर करते हैं, पॉलीएटमिक मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे होंगे? इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर कंसीडर करेंगे तो दैट होल कंबाइंड गैस कैन मूव इन ऑल द 3 डायरेक्शन, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस. 3 ट्रांसलेशन और तीनों तरह से रोटेट भी हो सकता है. अलॉन्ग एक्स एक्सिस इट कैन रोटेट, अलॉन्ग वाई एक्सिस इट कैन रोटेट, अलॉन्ग जेड एक्सिस इट कैन रोटेट. मतलब टोटल 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल. वाइब्रेशन कितना वो नहीं मालूम, बिकॉज ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये पता चला ये इसके साथ वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ये रिजिड है. तो आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी वाइब्रेशनल मोड है. तो अगर वाइब्रेशनल मोड अगर हमने कंसीडर किया कि इसका कुछ ना कुछ वाइब्रेशनल मोड होगा, सपोज वाइब्रेशनल मोड इज कंसिडर्ड एज F, देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके लिए हो जाएगा 2F, बिकॉज फॉर एवरी वाइब्रेशनल मोड देयर विल बी 2 मोड्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक, इसलिए F की जगह पे 2F हो जाएगा. एंड फाइनली दिस विल बिकम एज 6 + 2F. एंड व्हेन इट कम द क्वेश्चन ऑफ एनर्जी पर मोल, सेम ऐसी एक्सप्रेशन रहेगा, बस यहाँ पर क्या होगा, दिस इज 6 + 2F इंटू हाफ RT होगा, 2 कैंसिल होगा, दैट मीन्स इट विल बिकम एज 3 + F इंटू RT. एंड व्हेन वी कंसिडर CV दैट इज गिवन एज D बाई dt, दैट विल कम एज 3 + F इंटू R. सेम वे अगर CP कैलकुलेट करेंगे दैट विल बिकम एज CV + R, और R अगर ऐड होगा दैट विल बिकम एज 4 + F इंटू R. That means ratio will be given as Cp by Cv, which comes out to be 4 + F upon 3 + F आएगा, where F is variable, depends upon gas to gas, जैसा गैस रहेगा उसके हिसाब से होगा.